So hello students, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on practice time for JEE Advanced Physics जहाँ पे हम हर वीडियो में एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं JEE Advanced Physics की. Ocean is equal to summation of water droplets. You know what do you mean by this? So हम रोज़ एक एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. एक महीने में 30-40 प्रॉब्लम्स हो जाएगी. सिमिलरली एक साल में 400-500 प्रॉब्लम्स होगी JEE एडवांस्ड की. We surely boost your numerical strength for JEE Advanced Physics. So without I waste your further time, let's get started with our today's problem. So here we go. Gravitational acceleration of surface of planet is given √6 or 11 g. This is the acceleration of any planet which we don't know. इसकी acceleration दी गई है where g is the acceleration due to gravity on the surface of earth. मगर जो g है, g is the acceleration of gravitational acceleration that's on the surface of earth which is 10 meter per second square. The average mass density of the planet, जो इस planet की average mass density है, it is 2/3 times that of the earth. If the escape velocity of the surface of earth, we know that it's 11 kilometer per second. तो मुझे escape velocity find out करनी है planet पे. Is the question clear to you or not? So let's get started with the solution. We know that जो आपकी gravitational potential energy होती है, that is Gmm/r, if it is equal to your kinetic energy. तो क्या होगा, जो वेलोसिटी निकल के आएगी यहाँ से, how much is that? It is 2gm/r. ठीक है, this is your escape velocity. और we know that जो g होता है, it is gm/r square. Therefore आपकी जो escape velocity होती है, it can be written as √2gr. Just basics. I don't know कि मैंने ये क्यों किया यहाँ पे टच. Okay, this is your escape velocity formula. Now as you can see, √2 is constant, so escape velocity is very proportional to root of gr. Escape velocity is proportional to root of gr. ve means escape velocity, सबस्क्रिप्ट में सिर्फ e means escape velocity. देखो क्वेश्चन में दिया गया है एक प्लैनेट, ठीक है, एक प्लैनेट और अर्थ दी गई है. मैं क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट टू दैट ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज escape velocity of the planet divided by escape velocity of the earth is equal to your root of gravitational acceleration of the planet into radius of this planet, because from this whole divided by gravitational acceleration of earth into radius of earth. चलिए, this is our equation number second. Yeah, why second? This is our equation number first. Basic ही तो है. Okay, this is our equation number first. तो देखो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ये मुझे पता है. तो मुझे फाइंड आउट करना है दिस टर्म. इसके लिए मुझे चाहिए रेशो ऑफ जीपी और जीई, और रेशो चाहिए मुझे किसका, आरपी और आरई. जब मुझे रेशो इसका और इसका मिलेगा, आई नो दिस, इसको मैं मल्टीप्लिकेशन लूँगा इन माई राइट हैंड साइड, तो आई गेट वट आई विल गेट इज वीपी. तो वीपी ही मुझे चाहिए. इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? देयर इज समथिंग गिवन इन द क्वेश्चन. गिवन क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज √6 or 11g. दैट मीन्स gravitational acceleration of the planet is given by √6 divided by 11 into g. क्या g of earth लिखेंगे, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ gp divided by ge is equal to your √6 divided by 11. क्या मैं लिख सकता हूँ? yes. Let's suppose this is my equation number second. I got this. Now I need this one. Now I need rp over re. Is this very quite clear to you or not? Great. Let's
वी नो दैट जो g होता है इट इज़ योर जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फॉर एनी प्लैनेट हैविंग मास एम और रेडियस आर। बहुत ही बढ़िया। क्या मुझे पता है डेंसिटी जो होती है इट इज़ योर मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्या मैं इस m को लिख सकता हूँ रो इंटू वी? यस, सो आई कैन राइट इट एज जी रो वी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। क्या सी प्लैनेट जो है आपका ये स्फीयर है, आपका प्लैनेट भी तो स्फीयर ही है और स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या मैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ? 4/3 पाई आर क्यूब ऊपर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर तो ऊपर आ गया आर। इज दिस क्वाइट क्लियर टू यू और नॉट? बहुत ही बढ़िया। अब क्या करूँगा मैं? नाउ सी दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे रेशो चाहिए किसका? आर पी और आर ई का। ग्रेट। मैं यहाँ से क्या करूँगा? आपका g जो है फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ प्रपोर्शनल टू योर g इज़ प्रपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस। अब मैं यही इक्वेशन कंपेयर करूँगा और रेशियो निकालूंगा प्लैनेट और हमारे अर्थ का। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दैट मीन्स g of planet divided by g of earth can be written as rho planet or rho of earth into r p or r e. What is gb by ge? From equation 2 it is root 6 by 11 is equal to, आई थिंक डेंसिटी दी गई है हमारे पास। सो आर पी और आर ई जो डेंसिटी दी गई है लेट्स सी इट। हाँ, द एवरेज मास डेंसिटी इज 2/3 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। द एवरेज मास डेंसिटी इज 2/3 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ प्लैनेट जो है इट इज 2/3 डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो आई कैन राइट इट एज rho p or rho e is your 2 over 3 into rp over this. So my radius of planet divided by radius of earth क्या है मेरे बराबर 3√6 over 22. Yes. इक्वेशन नंबर थर्ड देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, वी आर हैविंग इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड भी है। दैट मीन्स ये रेशो भी मिल गया, ये रेशो भी मिल गया, इसका वैल्यू भी पता है तो ये तो ओबियस है अब। सो यूजिंग 1 2 and 3 या फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 we get वाई आई रोट वी बिकॉज आई होप कि आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, बस आप देख नहीं रहे हो। आई एम इंक्लूडिंग यू विद मी। सो व्हाट इज योर इक्वेशन फर्स्ट? वी पी और वी पी डिवाइडेड बाई वी ई, चलिए, इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज योर जी पी बाई जी ई? जी पी बाई जी ई फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इज √6 over 11, √6 over 11 into what is your rp or re from equation third? It is 3√6 whole divided by 22. सॉल्व करना है। आफ्टर यू सॉल्व दिस what you will get is 3 over 11. So velocity of planet is nothing but 3 over 11 into velocity of earth, escape velocity of earth actually. So it is your 11 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ से इसने इसको मारा है। what you are having is velocity of the planet जो आपके पास आ गई, it is nothing but your 3 kilometer per second. This is your answer to this question. I hope this is very quite clear to you. देखो, मैंने पहले ही बताया था जब मैंने सीरीज शुरू की थी कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट आई थिंक दिस इज़ आवर
प्रॉब्लम नंबर 17 या 18 इस सीरीज पे, ठीक है। तो हार्डली एक या दो प्रॉब्लम्स खींची हुई होगी मैंने, बट सारी प्रॉब्लम्स अंडर 10 मिनट सॉल्व होती है। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम, गो फॉर इट। 1 सेकेंड। चलिए 1 2 3, ओके। चलिए 1 2 3, ग्रेट। आई होप दिस इज़ वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। कोई क्वेश्चन है या कुछ और, यू मे आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आपने ये वीडियोस भी देखे हो गए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, everything is beautiful here. So let's see you soon in the very next video. Till then, take care, goodbye, and see you.